Bhandoga is a typical remote Himalayan village in Doda district in the state of Jammu and Kashmir in India. It has a population of 800, mainly subsistence farmers. It has over 200 children eligible for education. Families who wish to give their children basic education have to send them at a distance of 10 km walking back and forth every day. Bhandoga remains cut off from rest of the world in all four seasons. It lacks almost all the basic necessities of modern life, such as a road, electricity, a healthcare clinic, or a school. At over 6,000 feet, this is just one of the many villages in remote areas of Jammu and Kashmir with no motorable access. Education in this mountain region has been inaccessible for decades. The majority of children get very little or no education due to these very practical difficulties. To overcome these problems, we have started LEAP, the village school. Maneza, Miss? Naida, Say, Nazma, Aicha. Salma. Am she na cut karo? हाँ मम्मी तो पाप का इच्छू फिक्स है हाँ दान उसे जरा LEAP, the village school, is a long term, continuous project to improve the overall literacy in the rural villages of Doda in Jammu and Kashmir, starting with the village Bhandoga. Boys do have an advantage over girls as they go to school up to middle level or high school level. But unfortunately, girls are kept away from formal schooling and they are married by arrangement in their teenage years. This has some serious consequences, such as poor health and loss of equal opportunities to individuals, families, communities, and to the country. The parents are less aware about the benefits of educating girls. Therefore, one of the main aims of LEAP is to encourage and improve female literacy in rural villages of Doda by raising awareness about the importance of girls' education and supporting girls from poor families into education. Raising awareness will be done through campaigns, meeting families, events and activities that would be conducted by the LEAP management. And we believe that promoting awareness about importance of education in this way will be more effective. This will motivate parents to educate their daughters too and hence improve the number of girls in schooling. There still might be some girls from the poorest who will not be able to go to school because they cannot afford it. So, the project will support these girls up until the final year of schooling. अभी बहुत टाइम है असली में इफ्तार में हाँ टाइम तो काफी है अभी तो आज मेरे ख्याल 25-26 बार है हाँ क्या चक्कर है क्या चक्कर हाँ खाना ना केज ये क्या शुभ वन दान करना हाँ वो दान था रिकॉर्ड कर नाड़स द्राव स्नान करने द्राव से ये गणित प्रॉब्लम कि स्कूल नज़दीक कह स्कूल तह दूर दगिन गुरबत की वजह से मे पोर्मुत
आख ज क्लास में पढ़मुत फगसू मज बाकी 2-3 क्लास में पढ़मस नवटास मज तत पे हेर 8वीं ताश में पढ़मुत 3-4 स्कूल मज कोर्मुत 8वीं अच्छा 5 तन किल्लत अस 2 दो पे दिन मजूर करनस तो 4 दो दिवान स्कूलस पढ़ाई कर गुर्बत की वजह से यानी पे लुक हंदन घर मज बिहुन यथ दौरस मज तम दो मतलब स्कूल इलाक मज यहाँ पे नांदना ना तो फगसू ना तो हलार अगर बोर्ड एग्जाम दिन सह हलार दिन अच्छा ना तो दिन जंगलवाल अच्छा पे गरीबी गरीबी हंद वजह से हेक नो लुको पढ़ ब्रोट नीर सारी गरीब दह लग ये वातन ठाठरी ना वातन फगसू ना गन बे कुन दह लागुन काम दह कर अद शामस वातन गर The goal of constructing a school for the underprivileged students in the remotest area is to enable these children to complete their primary education and get access to secondary education and to improve the female literacy levels, particularly of the poorest families. The main objectives of LEAP, the village school, include providing a purpose-built learning environment, helping underprivileged children to achieve better improvements in their lives to enable them to contribute to the development of their families, their community, and the nation as a whole. Provide support to children who are from the poorest families and struggling to maintain schooling costs. तुझ स्कूल गसान कते हाँ ठाठ रही है आप कौन सी क्लास में हिंदी आती है आपको कहाँ पे पढ़ती हैं आप नवटास में पढ़ती हैं ओके नवटास जाने में कितना टाइम लगता है यहाँ से गाड़ी से जाती हैं या अस्सलाम वालेकुम जी अंकल तो किस में ताचू पढ़मत चलो गो असल ना इट्स ओके तो भी रिलैक्स तो किस पढ़ो ना तो क्या शू करन वंकन हाँ वंकन आसन गोबलन किन क्या शूर शू तो वंकन त्रे तिम गसन स्कूलस वंकन क्या करन तिम तिम चारस मज ओके कोड़े पढ़ना आपका नाम क्या है पूरा सर केवल सिंह राज। आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से की वो बताओ सर मैंने अपनी मिडिल एजुकेशन जम्मू से की है हायर जो वो थी मैंने की नानना से अच्छा तो सेकेंडरी लेवल मैंने की जंगलवाड़ से तो अभी मैं कर रहा हूँ बीकॉम कर रहा हूँ जम्मू से। तो आपका घर है मतलब जो है अभी तो वहाँ पे स्कूल था क्या कोई स्कूल तो था बट मिडिल लेवल तक किया है अभी भी मिडिल लेवल तक और किया वहाँ का क्वालिटी या सर क्वालिटी तो वहाँ पे टीचर्स तो फिलहाल टीचर्स 1 या 2 टीचर्स ही आते कंटिन्यूसली जो हैं तो स्टूडेंट्स भी वहाँ पे बहुत कम है क्योंकि मतलब बेस्ट एजुकेशन मिलती नहीं है बच्चों को इस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं तो इसलिए कुछ बच्चे मतलब सिटीज एरिया में चले जाते हैं और जो मतलब गरीब लेवल के मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे लेवल के स्टूडेंट्स हैं वो तो बेचारे पढ़ते हैं लेकिन वो कहते हैं ना उनको एजुकेशन नहीं मिलती अच्छी तरीके से तो यहाँ का सिस्टम कुछ मतलब लो ही लगा मुझे मतलब जो लेवल होनी चाहिए बच्चों की उससे लो लेवल ही मिल रहा है बच्चों को अभी तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं है जी सर। और जो आप हायर सेकेंडरी में क्या लगा आपको जब आप जंगलवाड़ हायर सेकेंडरी वहाँ पे कैसा हायर सेकेंडरी में भी यही है सर जो हमारे लेक्चरर्स वगैरह हैं वो तो एक तो फर्स्टली वो परमानेंटली जो हमारे लेक्चरर्स है वो नहीं है। आपने कहा आप जंगलवाड़ से 12th किए जी जंगलवाड़ यहाँ से कितना दूर है सर नॉर्मली मतलब अगर टाइमली देखना चाहे तो 1.5-2 घंटा तो लग जाता है यहाँ से 2 आवर्स जी सर। गाड़ी वाड़ी है वहाँ के लिए या पैदल जाते हो नहीं सर यहाँ से तो रास्ता नहीं है वैसे गाड़ी वाला बट पैदल ही जाना पड़ता है। पैदल जाना पड़ता है ओके जाते वक्त और आते वक्त 2 घंटे या टोटल 4 घंटे नहीं सर जाते वक्त तो हमें कम ही टाइम लगता था क्योंकि मतलब ऊपर से जाना होता था क्योंकि हमारा यहाँ पे हिली एरिया है तो ऊपर से जाते वक्त तो हम जल्दी पहुँच जाते थे बट नीचे से आते वक्त बहुत प्रॉब्लम फेसिस होती थी। सो नीचे से आने में कितना टाइम लगता है सर नीचे से नॉर्मल 3 आवर्स तक लग जाते हैं। ओके विच इज 5 आवर्स अ डे जी सर। मतलब आपका 5 घंटे सिर्फ वॉकिंग में चला जाता था। जी सर। ओके नाम क्या है आंटी कृष्णा देवी अच्छा
तो आपने पढ़ाई की है कभी? नहीं, पढ़ाई तो नहीं की। कुछ भी नहीं। अच्छा, तो बच्चे कितने आपके? 5। 5 बच्चे हैं। हाँ, उसमें 2 गूंगे हैं, 3 अच्छे। अच्छा, आप क्या करती हैं? क्या है, वही खेती बाड़ी का काम करते हैं, तो बस घर में ही जो क्या करना। बच्चे ये कमाने वाले। अच्छा, क्या करते हैं बच्चे वो? मजदूरी हो, जो एक गूंगा है तो वही करता है मजदूरी, बाकी वो स्कूल जाते हैं छोटे छोटे। अच्छा, तो और कौन है कमाने वाला, कौन है और? कोई भी नहीं है क्या घर में? आपके हस्बैंड? उनको 11 साल हो गए, वो मर चुके हैं। क्या शो नाम अंकल? मैं ज्ञान तो शो पढ़मो वैसी थे पढ़ना किस में था? हमार तीसरी 15 छुटाऊ पढ़ाई छन क्या थी 10वीं पढ़वी 32 वनु तो नाव लेखुन तमिश जाए। मतलब आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस है, आपको अभी मौके मिल रहे हैं स्टेजेस पे जाने के लिए, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपना बेस्ट देना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है हर बच्चा कुछ भी बन सकता है। क्या होता है इम्पोर्टेंट इंसान की लाइफ में, अगर उसको पढ़ना है, ठीक है, उसकी लगन। जब आपके पास लगन है ना कि नहीं मुझे कुछ बनना है, अगर लगन होती है और एक इमेजिनेशन होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है। खतरनाक वीडियो। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? नहीं मैं नाउम्मीद इकबाल अपने कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज से साकी। तो ये जो शेर है ये आप पे इस हमारी लीव द विलेज स्कूल पे बिल्कुल फिट बैठता है। उसने भी यानी गांव की हालत देखी, किस तरह से हम जो गांव के लोग हैं, हमारे पिछड़े जो लोग हैं, इनको कैसे अपलिफ्ट किया जाए, इनको कैसे आगे लाया जाए। क्योंकि ऐसी जैसी सोच हर एक के दिमाग में नहीं होती है। कोई दर्द लेता है दिल पे तो वो ऐसी सोच रखता है। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसको ये काफी दूर तक ले जाएंगे।